पढ़ने का मजा आता कब है तुम्हें? ऑफलाइन। ऑनलाइन से याद आए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन ऑनलाइन? यस सर। यस सर। नाम बोलो अपने। सर आर्यन। Okay, Aryan is there. Very nice, Aryan. Proud of you. और सर गौरव। Amiteshwar is there. सर गौरव। Gaurav is there. Attendance हो रही है, please. Speak up. दिव्यांका। और प्रियांशु। और Okay, write down next. Proteins. Write down proteins are ये पढ़ाई का माहौल है क्लास में। Proteins are the condensation polymers of alpha amino acids. Condensation polymers of alpha amino acids. So before we go into the detail of the word protein, we have to see what are alpha amino acids and all this stuff. So write down alpha amino acids. No. In an alpha, this is a general representation of an alpha amino acid. There are 20 alpha amino acids and they contain an amino group, a carboxylic group. So the 20 amino acids, they will just differ in the R group. Right? Now, carboxylic group, you know, is acidic. Amino group is basic. What are the compounds which contain acidic as well as basic group within the same compound called as zwitterions? Very nice. ठीक है. So थोड़ी देर में discuss करेंगे alpha amino acids, they exist as zwitterions if R is H. This is the simplest of amino acids which we call as glycine. If R is CH3, इस तरीके से R will keep on changing and the amino acids will keep on changing. Right? You don't start cramming the 20 amino acids, not required. You should be knowing the simplest one, glycine, that's it. एक मैंने ऐड कर दिया और कि if R is CH3 then it is alanine. Clear हुआ amino acid? लिखो, बनाओ जल्दी से। बनाने में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग, अपना ही बना रहे हो बेवकूफ। अब सीरियस हो जाओ तुम। अगला टेस्ट विल बी क्रूशियल फॉर द वे आई ट्रीट यू। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्जेक्टिव टेस्ट डालूंगा मैं अराउंड 30-35 मार्क्स का। आई वांट अ गुड अटेम्प्ट बिकॉज दिस हैज बीन बैड। एक सिंगल पेज में किया हुआ है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है यार।
ठीक है, लिखो अमाइनो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. Amino acids are of two types. First is essential amino acids. पहले बात करते हैं essential amino acids. Amino acids which cannot be synthesized in the body. Amino acids which are synthesized. Cross check कर रहा था मैं. Which cannot be synthesized in the body and have to be supplemented in the diet. And have to be supplemented in the diet. Example is valine. Valine. एक और याद कर लो. Leucine या leucine, whatever you pronounce it. ठीक है. So essential amino acids वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, डाइट में सप्लीमेंट होने चाहिए. Then what will be the second ones? Non-essential amino acids. Non-essential amino acids. Non-essential amino acids which are synthesized. Amino acids which are synthesized in the body, which are synthesized in the body and hence need not be supplemented in the diet, and hence need not be supplemented in the diet. दो तो यही आ गए, ग्लाइसिन एंड एलेनिन. ये आ गई हमारी कौन सी क्लासिफिकेशन? फर्स्ट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. सेकंड लिखना न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. Neutral amino acids continue in this only, which contain equal number of amino and carboxyl group, which contain equal number of कौन से? amino and carboxyl. जैसे आपका ये दोनों, एक इसमें बेसिक है एक एसिडिक है तो ये न्यूट्रल रहेगा. देन यू हैव एलेनिन ऑल्सो, एक एसिडिक है एक बेसिक है, दे विल बी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. बट अगर किसी में एक एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाए यहां पर, दैट विल बी एसिडिक, और किसी में आर के अंदर कोई बेसिक ग्रुप आ जाए, दैट विल बी बेसिक अमाइनो एसिड. सो राइट डाउन एसिडिक अमाइनो एसिड्स. एसिडिक अमाइनो एसिड्स which contain more number of carboxyl group than amino group. More number of acid, they कौन से group? Carboxylic group than amino group. Example, glutamic acid. Glutamic acid लिख रहा हूं, glutamic acid. Another one is aspartic acid. These are acidic. Clear? Then we have
basic amino acid. Basic amino acids which contain, bolo, which contain more number of amino groups, which contain more number of amino groups than carboxylic groups. More number of amino groups than carboxyl group. Example, lysine, Lysine. Then you have arginine, lysine, arginine, adding one more to the list, histidine या histidine. पर अगर दोनों क्लासिफिकेशन में बोलूंगा, आई विल से एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक. आर यू क्लियर अबाउट दीज थिंग्स? अमाइनो एसिड क्लियर हुआ? ठीक है. लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स. व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स? महक, because alpha carbon based amino. दैट्स राइट. ये आपका फंक्शनल ग्रुप है. दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, सो दैट्स वी आर कॉलिंग इट एज अल्फा अमाइनो एसिड्स. तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स. अभी बताना है मैंने. फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड अमाइनो एसिड. लिखना प्रॉपर्टीज. कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, colorless crystalline solids. Second, should they be water soluble or not? Should they be water soluble or not? Hydrogen present. Hydrogen was कर ले तो अटेंड, तो बिजनेस ना मिस हो जाए कोई. 2-3 लाख की कॉल तेरी. पता नहीं तुम्हारे को पेरेंट्स ने मोबाइल दिए क्यों है पहले, और अगर दिए भी हैं, बी मैच्योर अबाउट हैंडलिंग इट. लीव इट फॉर 2-3 मंथ्स के बाद तुम्हें मोबाइल ही यूज करने हैं, मे बी रिपेयर करने हैं. कोई शर्म नहीं है? मैं सच्ची बात बता रहा हूं. तुम मान लो तुम ना, यू आर स्टैंडिंग एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. तुम्हारा जो 1.5 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर की जो तुमने छोटा मोटा एफर्ट किया है, उसको कैपिटलाइज करने का टाइम है ये. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वी हैव मिड ऑफ दिसंबर में आने वाले हैं हम, नेक्स्ट वीक में. अपने आप सोचो व्हाट यू हैव लेफ्ट विद यू, एंड तुम अपने आप देखना तुम्हारे टेस्ट. आई एम नॉट देयर टू बिलिटल यू, व्हाट कंटेंट 2-4 पेपरों को छोड़ के तो है ही नहीं है. मैं बताऊं, कुछ रिएक्शन का तुम देखते नहीं हो. NaOH आ जाएगा तो Na लगा दो तुम कहीं भी. तुम ये नहीं देखते कि एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, ये कैनिज़ेरोज हो सकता है. आई डोंट नो हाउ यू सी द रिएक्शंस. एंड ओनली वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, प्लीज प्रैक्टिस. मैं तुम्हें बोला ऑर्गेनिक रेडी करो, और ये वी आर मेकिंग वन मोर अटेम्प्ट. ये तुम्हारे को प्रॉपर टाइम से बताया गया. अब ये वाला टेस्ट प्लीज अच्छी तरह से करना. तभी तो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव डाल ही नहीं रहा हूं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज ऑल तुक्का टाइप सिस्टम. मारते रहना तुमने जहां मारने होंगे. व्हाट आई वांट द कंटेंट रिटन देयर इन द नेक्स्ट पेपर. प्लीज डू दिस चैप्टर नाइसली. एक बार तुम्हारा ये चैप्टर हाथ में आ गया, मतलब ये बायोमॉलिक्यूल्स तो तुम 2 घंटे की काम है. ये 2 घंटे का काम है. बायोमॉलिक्यूल्स आपका रेडी हो जाएगा, कभी भी रेडी हो जाएगा. इसकी मुझे टेंशन ही नहीं है. मैं तो ये अज्यूम कर चुका हूं, माय सिलेबस इज डन विद यू. ये कुछ भी नहीं है ये. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें कुछ भी चीजें बताने वाली नहीं है. दिस इज मोर ऑफ अ क्रैमिंग स्टफ. मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि ये करो और ये मत करो. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग विद यू. अदरवाइज यू कंसीडर योरसेल्फ यू आर ऑन अ रिवीजन मोड नाउ. और रिवीजन को प्लान करो अपने हिसाब से. यू पीपल कैन डिस्कस अमंग योरसेल्व्स. दिस इज वे वी वांट टू गो अबाउट इट. मेरी अपनी स्ट्रेटजी है. What you can come up with yours कि सर हमने ये चैप्टर पहले करना है. दिस इज वे वी प्लान. 2 चैप्टर करेंगे, फिर उसका टेस्ट करेंगे. वी विल डू अकॉर्डिंगली. बट तुम अपने लिए करना है. तुमने ये चीज माइंड में रखना है. यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, एंड दिस इज लास्ट टाइम वी विल बी डूइंग इट.
आई होप आई एम अंडरस्टूड हियर। ठीक है, प्लीज एल्डिहाइड कीटोन अच्छी तरह से तैयार करके दो, सो दैट आई रिमेंबर दिस एज वन ऑफ द गुड टेस्ट यू हैव गिवन टू मी। ठीक है, कहां था मैं? Crystalline. Crystalline. They are crystalline solids. I was telling, should they be water soluble, Nilohit? Reason है? Acid base. Because ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो there is nothing like solubility here. They are highly soluble in water. So लिखो, they are highly soluble in water. Second, या third, whatever it is, they have high melting points. They have high melting points. Next line में लिखना है इसको, due to the presence of an acidic, या n नहीं लगाएंगे, सिर्फ acidic लिखेंगे, due to presence of acidic as well as basic groups, they exist as dipolar ions. ब्रैकेट में Zwitter ions. They exist as Zwitter ions. देखना, अंडरस्टूड? यहां पे लोन पेयर है which can receive a proton. This carboxylic group is capable of donating a proton. So this is a neutralization reaction taking place within a single molecule. अदरवाइज एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए एक एसिड अलग से लेना पड़ता है और बेस अलग से लेना पड़ता है। यहां पर विद इन द सिंगल मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइजेशन इज हैपनिंग, राइट? सो दिस H positive ion will get transferred here, and what do we get is NH3 positive COO and H. Clear? No. अगर इस, अब आपको पता है कि आपका जो अमाइनो एसिड है वो ऐसा तो है ही नहीं है, वो तो ऐसा है। Am I understood? अब इसके अंदर सपोज मैं कोई एसिड ऐड कर देता हूं, दैट विल मीन क्या होगा? H पॉजिटिव यहां लग जाएगा, तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर जो आपका Zwitter आयन है दैट विल बिकम अ सिंगल आयन। ठीक है, इट विल बिकम RCNH3 positive HC. It will behave as a cation. और अगर यहां पे मैं मीडियम को कर देता हूं बेसिक, OH नेगेटिव आयॉन्स कम, क्या करेंगे बता? NH3 पॉजिटिव वाला H पॉजिटिव लेके वाटर लेके निकल जाएंगे, यानी कि NH2 will become neutral again. ठीक है, so I will have formation of RCNH2HC. So in basic medium they behave as, clear है? अब पहले सुन लेना मेरी बात। अब मुझे बताओ, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगा, विल दे माइग्रेट? यानी कि इमेजिन करो, ये जो क्लासरूम है ये एक सॉल्यूशन है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, द मेटल प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, द मेटल प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और इसके अंदर मैंने Zwitter आयन रख दिया, अमाइनो एसिड रख दिया, अंडर व्हाट मीडियम? It is mostly behaving as a, so it will migrate towards the negative plate, and if I have kept the basic solution, it will migrate towards what? हर अमाइनो एसिड के लिए मैं एक ऐसा pH क्रिएट कर सकता हूं जिस pH पे ना वो एनायन बिहेव करे ना वो, because I will neutralize this positive charge or this negative charge. That pH is called as isoelectric point. अभी देखो, अभी इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कौन से वाली? पॉजिटिव, वहां पे नेगेटिव।
बट मैं एक ऐसा पीएच डालूंगा, बताओ आर के अंदर तो बेसिक ग्रुप भी हो सकता है एक्स्ट्रा, आर के अंदर एसिडिक भी हो सकता है, aspartic एसिड, ग्लूटामिक एसिड. सो for every amino acid there is a pH at which it does not migrate under the influence of electric field. That pH is called as isoelectric point. यानी कि उस pH के ऊपर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that gets neutralized, it becomes equal, that is neutral. Its electric field gets neutralized. उसको हम बोलते हैं isoelectric point. Am I understood here? ये नोट करना है, कर लिया, कर लो. बोलो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. क्लियर? इतना ज्यादा डिटेल में कोई नहीं आएगा. क्वेश्चन मैं सिंपल बता देता हूं. तुम्हारा क्वेश्चन आता हाउ डज अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, हो जाएगा. How do amino acid exist? Why do amino acid exist as Zwitter ions? Because they have acidic as well as basic group present in the same compound. Right on isoelectric point. The pH at which amino acid, the pH at which amino acid do not migrate, at which amino acid do not migrate under the influence of electric field. So every amino acid will have a definite isoelectric point that will depend upon उसमें कितने amino group हैं और कितने carboxyl group. Yes or no? पहले definition clear है? So it is the pH जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा या उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. लिखना द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एमाइनो, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एमाइनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप, number of amino and carboxyl group in the given amino acid. Clear? Next line. At isoelectric point, amino acids, at isoelectric point, amino acids have the least solubility in water. At isoelectric point, amino acids have the least solubility in water. So this property is used for the separation of different amino acids. This property is used for the separation of different amino acids obtained from the hydrolysis of proteins.
obtained from the hydrolysis of proteins. ये लाइन अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी तुम्हें. डन है. Please take your 1 minute on going through amino acids because इसके बाद it is all proteins that we will be talking about. So alpha word का significance, amino acids, essential, non-essential, Zwitter ions, and the isoelectric point. Any question, anyone? No? Amino acid clear हुए? Zwitter ion definitely इस साल क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्क का. और कौन है Zwitter ion? हमने पहले कहाँ किए हैं Zwitter ions? Zwitter ions we have done in amines also. ये देखो. क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? नहीं आ सकता तुम्हें, सवाल ही पैदा नहीं होता. It is sulfanilic acid. Sulfa word because of this and anilic word because the rest is aniline. अब बताओ, could it be a Zwitter ion? Yes. I see a basic group H positive ion migrating from here to here and this changing into NH3 positive, SO3 negative. A dipolar ion, we call it as an internal salt or Zwitter ions. Crystalline solids, highly soluble in water, high melting point. Done है? Clear? Come back to the word protein now. लिखो proteins. Now तुम्हें बताया protein. What is the condensation reaction? कौन है ये? अमाइनो एसिड है. मतलब मैंने R वहां पे यहां लगाया था, NH2 यहां लगा दी, थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, कंपाउंड ही चेंज हो गया तुम्हारी लाइफ में. ठीक है. So here I have two amino acids condensing. I will tell you what does the word condensation means. और ये दो ही नहीं है, बहुत सारे हैं. इधर भी एक अमाइनो एसिड है, आगे भी अमाइनो एसिड है, चेन कंटिन्यूस. Now as the two amino acids condense, condensation reactions are those reactions in which two molecules combine with elimination of a small molecule like H2O, CO2, NH3, HCl, etc. यहां पर कौन जाएगा बाहर? ये गया H2O, एक यहां से गया, इसका H अगले वाले का OH H2O गया, इसका OH अगले वाले अमाइनो एसिड का H H2O गया. So what I find is, बोलो क्या लिख रहा है मैंने अब? N, ये H तो जा चुका है बिकॉज H2O एज H2O लूज हो गया. ये C,
नहीं OH है। राइट, दैट OH हैज गॉन विद द नेक्स्ट अमाइनो एसिड का H। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे। सो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, N। नाउ दिस इज अ प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन के अंदर मुझे बताओ दो अमाइनो एसिड्स को कौन सी लिंकेज ज्वाइन कर रही है? वेरी गुड। सो प्रोटीन्स के अंदर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के ये, तुम्हारे लिए तो ग्लाइकोसिडिक ही है हर जगह। ठीक है, इट इज पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब बताओ ये C डबल बॉन्ड हो तो आगे यहां पे NH है ना। ठीक है, ये NH है तो आगे C डबल बॉन्ड हो। So there are large number of peptide linkages. So that's why proteins are also simplest definition polypeptides. ये तो एक पेप्टाइड है ना, आगे पेप्टाइड और पेप्टाइड। So proteins are also called as polypeptides. पहले ढंग से देखो इस चीज को। Here I've shown you two amino acids condensing with low loss of कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। कई बार क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एक्सपेक्ट इज पेप्टाइड लिंकेज। अगर स्टूडेंट सिर्फ इतना लिख के आ जाता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? शाबाश, विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? जिसको पता होगा रेज द हैंड। आई हैव वन हैंड, आई हैव टू, नो डाउट। एक और एसिडामाइड। दिस इज एमाइड लिंकेज। याद है एसिडामाइड्स, RC डबल बॉन्ड O। अब ये वाला NH, ये H हट गया, आगे चेन लगी तो बन गई ना एमाइड लिंकेज। सो पेप्टाइड लिंकेज की सिंपलेस्ट डेफिनेशन, एमाइड लिंकेज विच ज्वाइंस टू और मोर amino acids in a protein chain. ये तो पूरे गुस्से में चेक हुआ अब। करो ये नोट, मैं कर देता हूं, मैं मार्क्स बता दूंगा आपको। हो गया? लिखो पेप्टाइड लिंकेज
Peptide linkage. It is amide. Amide word लिखना है और उसके ब्रैकेट में ये लिखना है amide linkage, ब्रैकेट में ये amide linkage which joins the different amino acids in a protein molecule. Different amino acids in a protein molecule. So proteins are also called as, fill in the blank, polypeptides. Proteins are also called as polypeptides. Done है? Is the peptide linkage clear? एक बार देख लो if you want to have to ask anything. ये C double bond वो आगे NH है, then the amino acids continue and you have large number of these amide linkages repeating and they are generating you an peptide. So protein की अगर definition में आप polypeptide लिखते हो, peptide के लिए अगर बच्चा सिर्फ इतनी चीज लिख के आता है without saying a single word you get the 1 mark for it. पेप्टाइड लिंकेज को बच्चा अगर अमाइड लिंकेज बोल देता है, आगे कुछ भी नहीं बोलता है, मार्क विल बी गिवन, बट इफ यू नो इट यू हैव टू राइट इट. अमाइड लिंकेज which joins amino acids in a protein molecule are called as the peptides. Right है ये? ठीक है. Next लिखो, classification of proteins on the basis of the molecular structure. Classification of the proteins on the basis of the molecular structure. First one, fibrous proteins. Fibrous proteins, लिखना proteins in which the polypeptide chains lie side by side to each other, in which the polypeptide chains they lie side by side to each other, forming a linear thread-like structure. In which the polypeptide chains they lie side by side to each other, forming a linear thread-like structure. That's why the word fibrous. Right है? ये अगर आप एक फाइब्रस प्रोटीन को माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करोगे, आपको ऐसे बहुत सारे थ्रेड नजर आएंगे, where each this thread is representing a polypeptide chain. This is one polypeptide chain, then you have the next one, then you have the next one, and so on. Like the hair, जो hair है या muscles हैं जिसके अंदर myosin protein है, they are all fibrous proteins. लिखो examples: keratin, Keratin. Keratin is present in skin, in hair, in nails. Is a fibrous protein. Keratin. Example. Second is myosin. Myosin. Myosin present in the muscles are example of
क्या रहते हैं? मायोसिन, मायोसिन, एम्बायो, Pointers में they contain hydrogen bond and disulfide linkage as the forces of attraction. They contain hydrogen bond and disulfide linkage as the forces of attraction. They are water insoluble. डाइसल्फाइड लिंकेज मैंने डिस्कस करनी है. सो इनके अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी बताई? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड लिंकेज. हो गया. वाटर insoluble. Second लिखो globular proteins which have a globule spherical this appearance. Globular proteins. लिखना. Here the polypeptide chain. Here the polypeptide chain is folded forming a spherical shape. Folded forming a spherical shape. Example: insulin, albumin. Example: insulin, albumin. अब आपको पता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स कंटेन ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है. दे आर वाटर सॉल्युबल. दे आर वाटर सॉल्युबल. डन है. टेस्ट दे दूं पहले? सर यहाँ पे पढ़ना इम्पोर्टेंट है के बाद में. तीशा प्रेजेंट है. 33. क्रिश 15. महकप्रीत 32. वंश 12. तीशा ये सेम है कि डिफरेंट है? 2 नहीं, एक तो मेरे पास रीटेस्ट पड़ा हुआ है, ये एक अलग से पड़ा है. रीटेस्ट बाद वो पहले वाला है. पहले वाले में कुछ नहीं कर रहा था. ये नाम बोला. रुपया. रुबैया इज प्रेजेंट. केजिया सॉरी कितने हैं? 15. केजिया 22. किरण किरण इज देयर 11. नीरज कुमार 18. प्रियांशु 16. निधि 4. अमितेश्वर ऑनलाइन प्रेजेंट 40. दैट्स वेरी गुड. प्रियांशु ये कौन है? ये प्रियांशु कौन है? एक ही. अच्छा रीडेस दिया है. 46. जानवी 21. प्रिया 20. अर्शदीप. प्रिया कौन? पास करना. अर्शदीप पास करना 16. रोहित रोहित वही वाला है ये. 9. Panshul, this is what you gave.
क्यों? चलो, I will not speak the marks. 10. Hina, 13.5. Pradyuman, 11. कौन है? Harnoor, is Harnoor present online? Yes, sir. Harnoor 44. Okay, sir. That's good. Yes. क्या हुआ? स्वपनदीप, पहले तो लिखना स्टार्ट कर ढंग से। तेरे पे किया है तभी नंबर तेरे आज है। 9.5. निशा, कौन है? इसे तो असाइनमेंट लिखा है। टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली। 14. दिव्यांका, 23. जानवी, प्रेजेंट। गिरी, 16.5. गौरव, 30. यहां बैठता है नहीं? हाँ, 30. जानवी गुलाटी, 22. हर्षित, 42.5. वेरी नाइस। हरकीरत, 23. ईशिता, 30. वैशाली, 21. वैशाली इज प्रेजेंट, पास करना। सिमरनजीत, 17. राबिया, 38 या 28? 28. गुड। नीलोहित, 37. इसमें से देख लेना। और किसी के मार्क्स नोट ना हुए हो जिनको स्टार्टिंग में किस किस को मिले हैं? लिख लिए इसके? पंचू से पहले किस किसको मिले? हाँ जी बोला। और किसको मिला है? सर मार्क बढ़ा दो। नॉट। कितने हो गए? दिए 12 दे दो। आपकी ना मेरी 20 कर दो। मैं 20 लगा दूं इन्हें। तूने यही करना। तो रुक जा एक साल। आपकी ना मेरी करनी है तूने। जिन्होंने नहीं दिया टेस्ट, रेज द हैंड। प्री बोर्ड्स हो गए? ऑल रेडी फॉर द बोर्ड्स हैं? आउट ऑफ स्टेशन कहाँ? शिमला, हिमाचल में। ये भी पता नहीं कहाँ पे है। कौन सी प्लेस है? नंगल को हिमाचल थोड़ी है। उतना भी कौन सा हिमाचल है? क्यों? शिमला तो एनी डाउट देख लो जल्दी से। और एक बार टेस्ट को देखो। इफ यू वांट टू डिस्कस क्वेश्चंस प्लीज ट्राई देम। छोड़ परे। 57 में अब, looking at the things above 30 seems good.
अब जिनके अराउंड 30 या 30 से ऊपर है, यू कैन से यू हैव अ बिट ऑफ हैंड इनऑर्गेनिक व्हिच कैन ओनली बी बेटर. क्या 44 है ना हाईएस्ट? 47 तो रीटेस्ट वाले है वो. तो सर किसके बोलने थे आपने 47? कौन बोले हैं? एक की प्रियांशु. प्रियांशु के थे ना? उसकी टेस्ट करा फिर. अभी देख करके नहीं बोल उसने रहे. अमितेश्वर इज 40. उसका मेरे से कम ना सर, मेरे से ज्यादा ना करूं. अमितेश्वर वाला खा दूं ऐसे. But he seems to be a hard-working student. और Amiteshwar. मेरा नहीं, you are बेटा मेरे को पता है. घर पे पढ़ता पागल ना. Amiteshwar, well done. अब सबने देना है टेस्ट. सबसे पहले प्लीज मेक इट अ पॉइंट, आपने टेस्ट सबने देना है अच्छी तैयारी करके. इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, चलो अगली क्लासिफिकेशन लिखो. इसमें से 24 नंबर आया. लिखो सेकंड classification based on the hydrolysis of the proteins. Classification based on the hydrolysis of the proteins. On this very basis, proteins are of three types. लिखना first, simple proteins. Simple proteins. लिखो proteins which on hydrolysis. Proteins which on hydrolysis give only alpha amino acids. Proteins which on hydrolysis give only alpha amino acids. अब बताओ प्रोटीन बने किसके हैं? अमाइनो एसिड्स के. अब देखना, just see here. This is one amino acid. This is another amino acid. मुझे बताओ वो कौन सी लिंकेज है जो इन अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कर रही है? पेप्टाइड लिंकेज. एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ दीज टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड ज्वाइंट. अब जब आपने इस प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की, all the peptide linkages they break down. You get one amino acid, second, third, and so on. Is it clear? अब मुझे बताओ, मुझे इन दो अमाइनो एसिड्स को सेपरेट आउट करना है. What should I be doing? याद अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है, अब आपके पास, now listen here, ये consider my hand to be a protein where every finger represents amino acid. ठीक है, now this is an protein. अब जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस की, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल कम इन द सॉल्यूशन? 5. अब इन 5 अमाइनो एसिड्स को मुझे सेपरेट करना है. सो व्हाट विल आई बी डूइंग? आई विल बी चेकिंग आउट देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड आई विल क्रिएट दैट वेरी पॉइंट. अब जैसे ही इस अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्रिएट हुआ, इट विल बिकम इनसॉल्युबल, रेस्ट 4 विल रिमेन. तो इसको सेपरेट आउट कर लेंगे. फिर जब इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अटेन होगा, इट विल बिकम वाटर इनसॉल्युबल, रेस्ट विल रिमेन सॉल्युबल. सो वन बाय वन द अमाइनो एसिड्स विल बी सेपरेटेड. एम आई क्लियर हियर? सो आपने एक प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की, आपको सिर्फ एक चीज मिली, अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड. दैट प्रोटीन विल बी कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन. अब लिखो बी, द सेकंड वन, conjugated protein. Conjugated protein. Protein which on hydrolysis, protein which on hydrolysis gives alpha amino acid and a non-protein part, which gives us an alpha amino acid and a non-protein part. Any bio student will tell me what is this non-protein part called as?
एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? That is called as prosthetic group. The non-protein part of an protein is called as, I will say, non-amino acid part is called as a prosthetic group. Conjugated proteins. So conjugated protein के अंदर देखो, कोई भी प्रोटीन है उसके अंदर अमाइनो एसिड तो होगा ही ना. सिर्फ अमाइनो एसिड मिला तो क्या है? सिंपल प्रोटीन. बट अमाइनो एसिड को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा चीज मिली, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. और जो अमाइनो एसिड को छोड़ के जो पार्ट मिलेगा उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. एग्जाम्पल लिखना इसके. न्यूक्लियोप्रोटीन्स. इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स the prosthetic group is nucleic acid. In nucleoproteins, the prosthetic group is nucleic acids. Glycoproteins, the prosthetic group is sugars. Glycoproteins के अंदर जो prosthetic group है, they are the sugars. Lipoproteins, L-I-P-O, lipoproteins, the prosthetic group is lipids. Then you have chromoproteins, C-H-R-O-M-A. The prosthetic group is pigment having some metals. The prosthetic group is pigment having some metals. और इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे. हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप विल बी आयरन. ठीक है. ये कौन से प्रोटीन्स आ गए? कौन से? कॉन्जुगेटेड. अब लिखो थर्ड, डिराइव्ड प्रोटीन्स. डिराइव्ड प्रोटीन्स लिखना. दे आर द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. तो जब आपके सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, तो आपको मिलेंगे कौन से प्रोटीन्स? They are obtained by the partial hydrolysis of simple और conjugated protein. मुझे बताओ, इस प्रोटीन की मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की तो मुझे क्या मिलना है? अमाइनो एसिड. दैट्स राइट. बट सपोज अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना हो, so it will first give us proteoses which further break down into peptones, which further break down into polypeptides, which will then break down into amino acid. तो कई बार क्या होता है, आपने प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की, वो यहीं पे रुक गई और यहीं पे रुक गई या यहीं पे रुक गई. दैट प्रोटीन विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड प्रोटीन. Am I understood? ठीक है. श्योर. इसका एग्जांपल नहीं आएगा. ये डिपेंड करेगा कि कहां पे रुक गया प्रोसेस. अब सपोज यहां पे रुक गया या हाइड्रोलिसिस यहां पे रुक गई, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ डिराइव्ड प्रोटीन. ये एग्जिस्ट थोड़ी करते हैं, ये तो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है. दे आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. डन है ये. This is about the classification.
नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नहीं, क्लासिफिकेशन खत्म होगी अब। पहले हमें देखो सिंपल, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग अबाउट। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया प्रोटीन। प्रोटीन को पढ़ने से पहले हमने उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में स्टडी किया। व्हाट आर दोज? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के बारे में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद हमने उन अमाइनो एसिड को जोड़ना स्टार्ट किया। अब इन अमाइनो एसिड को जब हमने जोड़ना स्टार्ट किया तो कौन सी लिंकेज आई? पेप्टाइड लिंकेज। तो बन गए हमारे पास प्रोटीन्स। अब एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है तो वो फाइब्रस है, और अगर वो ग्लोब्यूल टाइप है तो वो ग्लोब्यूलर है। डन है ये। उसके बाद हमने प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की। एक प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की, सिर्फ अमाइनो एसिड मिला। क्या है वो? एक प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की, अमाइनो एसिड के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज मिली, कॉन्जुगेटेड। और एक प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की, अमाइनो एसिड नहीं मिले, कुछ और ही मिला। दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब हम एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अमाइनो एसिड, सॉरी, प्रोटीन। तो राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, राइट ऑन द लाइन। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन is studied at 4 different levels. Structure of the protein is studied at 4 different levels. तो एक प्रोटीन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमने 4 डिफरेंट लेवल्स पे बात करनी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। उसमें से हर स्ट्रक्चर हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। पहले लिख लो ये चारों। Primary structure, second is secondary structure, third is tertiary structure, and fourth is quaternary structure. Primary structure, secondary structure, tertiary structure और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। राइट है। आज हम एक ही स्ट्रक्चर करेंगे। राइट डाउन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, लिखना द प्राइमरी स्ट्रक्चर गिव्स अस द सीक्वेंस ऑफ The primary structure gives us the sequence of amino acids in a polypeptide chain. The sequence of amino acids in a polypeptide. So that is how these 20 amino acids are joined to each other. How many amino acids are there? 20. एक का नाम बोलो, एक नाम बोलो। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद एलेनिन लगा है। जस्ट ये देखना, सपोज दिस इज ग्लाइसिन, देन यू हैव वेलाइन, देन यू हैव सपोज एलेनिन एंड सो ऑन। और बोल दो एक ग्लूटामिक एसिड, एंड दिस इज सपोज aspartic acid. Just take, I will take 1 minute. ग्लाइसिन, वेलाइन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, aspartic acid, ये एक अमाइनो एसिड बना। अब इसमें क्या हुआ देखना, ये डू यू फाइंड एनी चेंज? सीक्वेंस में ग्लाइसिन के बाद वेलाइन आ रहा था, बट नाउ द सीक्वेंस हैज चेंज्ड। अब वेलाइन के बाद नाउ दिस इज वन अमाइनो एसिड एंड दिस इज अनदर अमाइनो एसिड। उसी तरीके से अगर आप इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, एक नया अमाइनो एसिड बनेगा। सो इफ यू चेंज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, the protein will change. सिकल सेल एनीमिया सुना है? Yes, सिकल सेल एनीमिया यही चीज है। अगर आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर एक भी अमाइनो एसिड का चेंज आ जाता है, then it causes the problem. Last line of the day, if the sequence of amino acid changes,
if the sequence of amino acid changes, protein changes. Sequence of amino acid changes, then the protein changes. Your test will be either on Tuesday or Thursday. During the class time only. Sunday नहीं करूँगा. कौन सा बड़ी बोर्ड? इकोनॉमिक्स का तो नहीं है इकोनॉमिक्स का भी है ना फिर उसके बाद अकाउंट्स का भी है उसके बाद रैंक मान पंचम में रैंक ये बुक को वापस करने को बोला था किसी ने, किया ही नहीं, मेरे को दे देना भाई, बुक मैंने बता दिया है। इशू कर दो इशू